میں نے کیا کیا تھا, میں کس طرح سے نکلا تھا, میں نے کیسے فائٹ کیا تھا. اگر آپ گیو اپ کر دیں گے, ڈپریس ہو جائیں گے, جنریشن کو کیا سکھائیں گے؟ اور مردوں سے خاص طور پہ آپ کو قوام بنایا اللہ نے. اگر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے, اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ آپ تو لیڈر ہیں گھر کے. اس لیے لیڈ فرام دا فرنٹ, مرد بنے مرد, اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ کی مدد قریب ہے, اللہ کی مدد دور نہیں ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. یہ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر میں آتا ہے کہ اگر ڈیفیکلٹی ایک ہے تو دو آسانیاں انشاءاللہ اس کے ساتھ آئیں گی. ہر چیز کا پیئر ہے, ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر آپ حل پہ آنے والے بنے. اور لیٹ سے کسی مسئلے کا حل آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا, تو صبر کر لیں, اللہ اللہ کریں, ورد کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی مدد پکڑیں. اوکے, اور دیر از اے وے آؤٹ. اگر کوئی بہت ہی ٹاکسک ریلیشن ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں تو یس دیر آر مینی سولوشنز وچ یو کین گو ٹو. مائی پوائنٹ از کہ شیطان کو ڈپریس بلیور بہت پسند ہے. اس لیے جب وہ دیکھے گا نا کہ یہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میں ڈپریسڈ ہوں بہت زیادہ, مجھے ڈپریشن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر مزید حملے کرے گا وہ. پھر مزید آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ کا لینز ہی وہ بن گیا that the world is a dark place and everyone is against me, اور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. جب ناشکری کا لینس پہنیں گے, نا امیدی کا لینس پہنیں گے, تو ہر جگہ ڈارکنیس اور ہر جگہ اندھیرا نظر آئے گا, ہر جگہ سیڈنس نظر آئے گی. وہی بات ہے نا کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے. اوکے, ابھی میں کلینکل ڈپریشن کی طرف نہیں آیا, یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے دکھوں سے ڈیل کرنے کے حوالے سے, اور اس حوالے سے کہ ہر چیز کو ڈپریشن نہ کہا کریں. شیطان کو یہ بات بہت پسند آئے گی آپ. اوکے, تو اب ہم بات کرتے ہیں سیڈنس کی. میں نے آپ سے بات کی کہ ڈپریشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہی ہو گئی ہے. دیکھیے, سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز. یہ جو ہے نا پال ایکمین, اس نے 6 بیسک ایموشنز ڈیفائن کیے, جن میں سے ہیپینس ہے, اینگر ہے, سرپرائز ہے, فیئر ہے, ڈسگسٹ ہے, اینڈ ون آف دم از سیڈنس. ان فیکٹ دیر از اے اینیمیٹڈ مووی میڈ بائی ہالی ووڈ جس میں انہوں نے ایموشنز دکھائے, ڈسگسٹ بھی دکھایا, اینگر بھی دکھایا, ٹھیک ہے نا جی, ہیپینس بھی دکھائی ہے, اور اس میں سیڈنس بھی دکھایا. تو دیز آر بیسک ایموشنز آف ہیومن بینگس. تو ایک بندے کو اگر سیڈنس آ گئی, اس کا یہ مطلب نہیں وہ ڈپریشن میں چلا گیا. سیڈنس بہت نیچرل چیز ہے. سیڈنس کی ڈیفینیشن ہے, سیڈنس از این ایموشنل پین ایسوسیٹیڈ ود اور کیریکٹرائزڈ بائی فیلنگز آف ڈس ایڈوانٹیج, لاس, ڈسپیئر, گریف, ہیلپلیسنس, ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ سورو. یعنی کتنا جامع کانسیپٹ ہے سیڈنس کا. کسی لاس کی وجہ سے بندہ غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی نے دل دکھا دیا اس کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی گریف کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے. تو یہ غم ہے. اور غم کی فلسفی کیا ہے, لیٹس ڈسکس سم آف دا تھنگس. دیکھیں, کبھی کبھی جب غم ہم پہ آتا ہے نا, ہمارے لو اسپرٹس ہو جاتے ہیں. آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اس کے اسپرٹس لو ہیں. اب لو اسپرٹ کا مطلب ڈپریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. لو اسپرٹ کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اسے آپ بوسٹ کریں گے, وہ بندہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب آپ کسی کو لو اسپرٹ میں دیکھیں, اس کو بک اپ کریں, اس کو بوسٹ کریں. اسلام اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی یا بہن کی مدد کریں. اس کا کوئی کام کر دیں, اس کے لیے ایز کریٹ کر دیں, اس کو مدد کر دیں, کوئی کاؤنسل کر دیں, اس کے چہرے پہ اسمائل لے آئیں جی. لیکن ایک بہت پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں. جب آپ لو اسپرٹس میں ہوں, قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کریں چپ کر کے. دیٹس اٹ. آپ کا رونے کا دل کرے, آپ بہت لو فیل کر رہے ہو, چپ کر کے قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں. دیٹس اٹ. اینڈ سی دا ریزلٹ. آفٹر 10 minutes you will feel so happy. After 10 minutes your mood will go here. Try it and test it. Trust me. یہ پریکٹیکل ٹپ ہے. پھر جی ڈسپیئر. کبھی کبھی انسان بڑا ڈسپیئر میں ہوتا ہے. انسان جو ہے نا, اس کو لگتا ہے کہ یار بڑی نا امیدی ہے. ڈسپیئر اور گلوم, یہ جو دونوں چیزیں نا, گلوم کی طرف میں آتا ہوں. ڈسپیئر ہے کہ ڈسپونڈنسی بھی جسے کہتے ہیں, ہوپ لیسنس. یقین کریں ہماری یوتھ میں ڈسپونڈنسی بہت زیادہ ہے.
दे थिंक कि उन्होंने इतने गुनाह कर लिए। मुझे इतना दुख हुआ। मैं एक जगह गैदरिंग में लेक्चर देने गया हुआ था और उसके बाद जो है ना मैं ऑडियंस से बात कर रहा था, तो वन ऑफ द अटेंडीज़ शी सेड कि मैंने उनकी ना थोड़ा सा बूस्ट किया, ज़ाहिर अटेंडी थी, तो मैंने कहा कि माशाल्लाह, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मैंने बड़ा इनकरेज किया। मैंने कहा कि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, तो मे अल्लाह ब्लेस यू। मैंने कुछ दुआज़ दी तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, उनकी ना बहुत दुखी टोन हो गई। शी सेड कि नहीं सर, मैं आप दुआ करें कि मैं नेक हो जाऊँ। मैंने कहा आप नेक ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला मज़ीद आपको नेकी में जो है वो इंक्रीज़ करे। बट शी सेड कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नेक नहीं हूँ और मैं बहुत ख़राब वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने बात की। तो देखें, ऐसे सेंटेंसेस ना कहें, शैतान को बहुत पसंद है सेंटेंसेस। यस, इट्स ओके टू बी हम्बल कि ठीक है अभी मैं बहुत गुनाहगार हूँ, सारे गुनाहगार हैं, लेकिन इतनी डिस्पॉन्डेंसी, इतनी होपलेसनेस कि बंदा कहे कि यार नहीं, मैं तो अब वापस ही नहीं आ सकता। तो इसलिए होपलेस सेंटेंसेस ना कहें। ये बात अल्लाह को भी नहीं पसंद कि मोमिन जो है वो होपलेस हो जाए। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कह दीजिए मेरे बंदों से जो होपलेस हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, असराफ कर चुके हैं, गुनाहों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। उसका दरवाज़ा तो नॉक करे ना, उसकी बारगाह में तो आए। वो तो कभी गया ही नहीं, इंसान ही जाता है और इंसान ही वापस आता है। अल्लाह ताला इज़ देयर, ऑलवेज देयर, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। तो हमारी यूथ में ज़रा डिस्पॉन्डेंसी है फॉर व्हाट्सोएवर रीजंस। बस ग्रूमिंग नहीं हुई, ज़ाहिर है कि विल पावर की कमी है, सेल्फ कंट्रोल की कमी है, इसकी बहुत सी रीजंस हैं, फिर कभी बात करेंगे। तो वी नीड टू ब्रिंग इट बैक। और जो एक और टाइप ऑफ सैडनेस है ग्लूम। ग्लूम में ये होता है कि आपको ना लगता है कि जैसे बहुत अच्छा मौसम है लेकिन आप उसको फील नहीं कर पा रहे, आपके दिल में अंधेरा है, आपके ना आपने वो लेंस पहना हुआ है अंधेरे का और ग्लूम का। हर जगह आपको लगता है कि यार हालात बहुत डाउन है, हर जगह आपको लगता है कि ना बस ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तो यस, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ ग्लूम। इसको पिक्चर में ऐसे दिखाते हैं जैसे एक बंदे पे ना काला बादल छाया हुआ है, हर वक्त वो काला बादल उसके साथ साथ चल रहा है जहाँ वो जाता है, तो उसे जो है ना वो कुछ और नज़र नहीं आता सिवाय काले बादल के, और वो हर चीज़ उसके पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सैडनेस, नॉट डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन की बात अभी आगे जाके आएगी। फिर ग्रीफ, ऑब्वियसली एक बहुत डीप सैडनेस का नाम ग्रीफ है। कुरान में अल्लाह ने कहा ना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ग्रीफ में गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि मैं ग्रीफ सिर्फ अल्लाह से शेयर करता हूँ, हुज़न जिसे कहते हैं। इट्स इज़ अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सैडनेस, नॉट डिप्रेशन। कि डिप्रेशन इज समथिंग जो आपको अनप्रोडक्टिव कर दे, एंटी सोशल कर दे, और नॉर्मल लाइफ फंक्शंस आप नॉर्मली ना कर पा रहे, ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि डिप्रेशन में। मिसाल के तौर पे एक बंदा ना, उसको बहुत चीज़ें भूलने लग गई हैं, उसको टास्क दिए जाते हैं और टास्क कर ही नहीं पा रहा, वो खाना खाने लगता है उसके हाथ से चमची छूट जाती है, ठीक है ना, उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये फिर डिप्रेशन है, ये फिर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडनेस है, दैट वी कॉल एज डिप्रेशन, जब वो नॉर्मल फंक्शंस ही नहीं कर पा रहा या कर पा रही है। ओके, तो ग्रीफ, यस, ग्रीफ इज़ अ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सैडनेस। अच्छा, ग्रीफ की मैं 7 स्टेजेस आपसे डिस्कस करता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। पहली स्टेज है शॉक एंड डिनाइल। जब बंदे पे कोई दुख आता है ना एकदम से, ऐसा दुख जिससे बहुत हिट हो, तो पहली स्टेज यूजुअली होती है शॉक एंड डिनाइल। बंदा हंसता है, ये नहीं मेरे साथ ये नहीं हो सकता, या बंदा एकदम से ना काउंटर करने के लिए शो करता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, शॉक और डिनाइल में होता है। लेकिन फिर अचानक वो फील करता है तो बड़ा ठप जाता है, एकदम ठप होता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो शॉक एंड डिनाइल। और पेन एंड गिल्ट के बाद जो थर्ड स्टेज है, दैट इज एंगर एंड बार्गेनिंग। फिर बंदा गुस्से में जाता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे कर लिया उसने मेरे साथ। और बार्गेनिंग से ये मुराद है कि वो मतलब कि अपने इमोशंस के साथ और अपनी वो सेल्फ के साथ ना बार्गेन कर रहा होता है, यानी कोई डील कर रहा होता है कि भाई अब इसको हल तो करना है ना। और फिर डिप्रेशन, रिफ्लेक्शन एंड लोनलीनेस।
پھر وہ تھک جاتا ہے، سوچ سوچ کے، انالیسس کر کر کے، بارگیننگ کر کر کے، غصے ہو کے پھر وہ تھک جاتا ہے. دیٹ سٹیج میں وہ جا سکتا ہے، اس سٹیج میں ڈپریشن میں، لونلینس میں اوبیسلی، اور ریفلیکشن میں بہت سوچتا ہے، سوچتا رہتا ہے، خاموش، ہر وقت خاموش، لاسٹ، آلویز لاسٹ ان تھاٹس. اینڈ دین دی اپورڈ ٹرن، اور اس کے بعد اس کا کم بیک ہونا شروع ہوتا ہے. یہی سٹیجز ہیں، یہ آپ اپنی لائف میں بھی نوٹ کریں گے. آہستہ آہستہ کم بیک ہو رہا ہے کہ نکلو اب اس سے. اور اگر یہ کم بیک نہیں ہوتا اور یہ چیزیں، یہ سرکل ریپیٹ ہوتا ہے اوپر کے 4 اسٹیپس، تو دین وی سے کہ دیٹ از ڈپریشن. بٹ اگر اف دیٹ پرسن اسٹارٹس ٹو میک اے کم بیک، دین دیٹ از گریف. اپورڈ ٹرن، ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو. Reconstruction of personality, of thoughts, of ideas. He or she starts to become more positive. He or she learns from the bad experience اور reconstruct کرتا ہے اپنے perspective کو، بہت سی چیزوں کو، right? And last one is acceptance and hope. اور پھر وہ بندہ accept کر لیتا ہے چیزوں کو کہ یار چلا گیا، ہو گیا لاس. مثال کے طور پہ میں ایک مثال یوتھ کو اکثر دیتا ہوں کہ آپ کسی کو چاہتے تھے، وہاں نہیں شادی ہوئی. یہ 7 سٹیجز سے آپ گزریں گے، اینڈ میں آپ قبول کر لیں گے، نہیں ہوا جی. وہ جیسے بالی ووڈ کا سانگ ہے نا، نصیب میں نہیں تھا جو ہم کو ملا نہیں، وہ بہت پرانا سانگ ہے. تو یہی بات ہے اصل میں کہ بھائی نہیں ہوا، بات ختم. اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے، اسلام تو کہہ رہا ہے بھائی پہلے ہی اسٹیپ پہ ایکسیپٹ کر لو نا. ٹھیک ہے یہ نیچرل اسٹیپس ہیں، لیکن اسلام آپ کو جلدی کم بیک کرا دے گا، یہ میرا دعویٰ ہے. سارے ہیومن بینگ ان اسٹیپ سے جاتے ہیں، بٹ اسلام ول میک یو کم بیک ٹو ارلی انشاءاللہ. You will see within days کیا within hours آپ ایسی ریکنسٹرکشن کریں گے، آپ ایسے واپس آئیں گے. اگر آپ کو اسلام کا نالج ہے، اللہ کے ایٹریبیوٹس کا صحیح پتہ ہے، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کریں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جانیں، پڑھیں، نکل آئیں گے آپ انشاءاللہ ان چیزوں سے بہت جلدی. تو یہ 7 سٹیجز میں نے گریف بتائیں. اچھا اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں سیڈنس کی مختلف ٹائپس ہیں. عربک گرامر کے مطابق بتاتا ہوں کہ کیا خوبصورتی ہے قرآنی ورسز میں، کیا مطلب گہرائی ہے قرآن کے الفاظ میں. وہ کیا ہیں ٹائپس آف سیڈنس؟ دیکھیں، ایک ٹائپ ہے الغمام. الغمام جو ہے نا اٹ کمز فرام، یہ جو الغم ہے، الغم ایک ٹائپ ہے قرآن میں، اور الغم ظاہر ہے اردو میں غم کو کہتے ہیں. الغم comes from the الغمام, which means this indicates when the clouds are so overbearing that not even a single ray of sunlight is able to break through. الغمام ان کلاؤڈس کو کہتے ہیں نا کہ جب سن لائٹ ان کلاؤڈ سے آ ہی نہ سکے، پاس تھرو ہی نہ کر سکے، تو غم is derived from الغمام. This is the kind of sadness where the bad thing hasn't happened yet but you are anticipating it. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا کریٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ سیڈنس کی کتنی ٹائپس ہیں. پہلی ٹائپ ہے الغم. یہ اردو والا غم نہیں ہے، اوکے، اردو والا غم اور ہے، یہ الغم الغمام سے نکلا ہے. اور یہ وہ والی سیڈنس ہے جو ابھی ایک حادثہ آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہے لیکن آپ یہ فیل کر رہے ہیں یار کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے. اور یہ شیطان بھی بہت زیادہ کراتا ہے. اس کا بہترین حل ہے اللہ پہ ریلائی کریں، دعا کریں، اذکار کریں. انی توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ انگزائٹی کی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، صبح 7 بار اور شام کو 7 بار. یہ حدیث میں آتا ہے. حدیث میں یہ تو نہیں ہے انگزائٹی کی دعا ہے، لیکن جو کوئی اس کو صبح اور شام پڑھے گا حادثات سے انشاءاللہ بچے گا اور اس کا توکل بڑھے گا، اور آپ دیکھیں کتنا سکون ملے گا. تو دیٹ از دا فرسٹ ٹائپ. Second type is حزن، الحزن. This kind of sadness is the sadness that sets into a person after an incident. Example, maybe a farmer who works on a farm has high hopes, but when the harvest time nears, a storm comes and destroys all his work. That is the feeling of حزن. Beautiful. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 38, there will be no fear concerning them nor will they grieve. حزن کے الفاظ ہیں. میں آپ کو بلکہ ایک اور یہ آیت سنا دیتا ہوں حزن سے ریلیٹڈ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
हुज़न से यहज़नून। नो डाउट, बेशक अल्लाह के औलिया, अल्लाह के फ्रेंड्स पे ना कोई फियर होगा, ना कोई डर होगा, ना ही दे विल ग्रीव। हुज़न क्या है? हादसे के बाद जो सैडनेस आती है, हादसे के बाद जो आप हिट होते हैं और उसके बाद जो आपकी गम की हालत होती है, उसको कहते हैं हुज़न। ओके, सो कितनी गहराई है कुरान मजीद में, सुभान अल्लाह। सो दैट इज़ द टाइप, जब आपको कुछ मिले ना, जैसे एक स्टूडेंट का कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो वो हुज़न में चला जाता है, तो उसका क्या हल है? तकदीर पे ईमान और औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली बने भाई, अल्लाह के दोस्त बने, अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं, अल्लाह से दोस्ती लगाएं, अल्लाह को टाइम दें, अल्लाह के लिए टाइम निकालें, जिक्र किया करें, फिर देखें आप हुज़न से कैसे निकलते हैं। ओके, दैट इज द सेकेंड टाइप। द थर्ड टाइप इज अलबस। नाउ व्हाट इज दैट टाइप? दिस काइंड ऑफ सैडनेस इज डीपली पेनिट्रेटेड इनसाइड and it starts impacting everything they do and they are not even able to verbalize it. एक बंदा अंदर ही अंदर कुड़ी जा रहा है, अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहा है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, क़ाला इन्नी अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि बेशक मैं अपनी सैडनेस, अपना ग्रीफ अल्लाह से शेयर करता हूँ। बस का यहाँ पे वर्ड है, बस से मुराद है कि ऐसी सैडनेस जो अंदर ही अंदर इंसान को खाई जाती है। जैसे एक बाप का बेटा छिन गया, एक बाप की जवान औलाद फौत हो गई है, वो सैडनेस उसे अंदर ही अंदर खाई जाएगी, वो बोल भी नहीं सकेगा मैं सैड क्यों हूँ। यस, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ अ नेचुरल सैडनेस, बट इसका हल क्या है? कंप्लेनिंग ओनली टू अल्लाह। लोग आपका कुछ नहीं कर सकते, लोग आपको एक हद तक सुनेंगे, उसके बाद कहेंगे यार हर वक्त ही सैडनेस और हर वक्त ही डीमोटिवेटेड है, छोड़ो इसको। अल्लाह से करें, स्ट्रेंथ वहाँ से पकड़ें, याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल। The fourth type of sadness in the Quran is asifa, and this sadness is mentioned in Surah Al-Araf chapter 7 verse number 150. मैं आपको वो वर्स सुनाता हूँ। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बाना असीफा क़ाला बि'सा मा खलफ़्तुमूनी मिन बादी। ये इसकी ट्रांसलेशन में आपके सामने पढ़ता हूँ। When Moses returned to his people, गज़बाना असीफा, angry and grieved. तो what is meant by asifa? Look at the beauty of the Quran. कितनी डेप्थ है कुरान में, सुभान अल्लाह। हम कुरान पे गौर ही नहीं करते, तदब्बुर ही नहीं करते, हम कुरान में डूबते ही नहीं हैं, अल्लाह से मांगते नहीं कि अल्लाह कुरान हमें उस तरह से समझने की तौफीक अता फरमा जिस तरह से तूने नाजिल किया। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये वो वाली स्टेट ऑफ सैडनेस है विच इज़ यूजली फॉलोड बाय नेगेटिव इमोशंस। यानी यू गॉट बैड ग्रेड्स, you can't actually digest it, you get angry and then this state of sadness comes asifa. तो ये मैंने आपको कुछ जो है ना वो सैडनेस की स्टेट बताई। एक और बताता हूँ, अल असा, इट इज अ रिग्रेट और सैडनेस ओवर एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। सुभान अल्लाह, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द कुरान, ऑल्सो यूज्ड व्हेन यू थिंक योर मिस्टेक्स फ्रॉम द पास्ट आर गोइंग टू नेगेटिवली इफेक्ट वट एवर यू डू इन योर फ्यूचर। तो These are some of the types जो मैंने आपको बताई हैं। और इमेजिन कि कुरान में कितनी गहराई है। इनफैक्ट एक और मुझे याद आ रही है, अलवैल। अलवैल इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग कर्स्ड, ऑफ बीइंग अफ्लिक्टेड विद बैड लक, होपलेसनेस इन अ वे व्हेन यू फील दैट देयर इज नथिंग यू कैन डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अलवैल का जिक्र आता है ना, ये अरईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन में भी अलवैल एक जहन्नम की वादी है जो डेडली है। तो इट इज़ अ डेडली स्टेट ऑफ योर माइंड व्हेन यू थिंक एवरीथिंग इज़ रूइंड, आई एम फिनिश्ड, डिस्पोंडेंसी है, होपलेसनेस है, कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। तो ये 6 टाइप ऑफ सैडनेस जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, देखें इन स्टेट से हर कोई गुजरता है। और मत ये तसव्वुर करें कि आप इनका सलूशन कोई नहीं। इस्लामिक फ़िलासफ़ी पहली बात है इनका सलूशन है। नमाज, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह ताला से दोस्ती, अल्लाह के लिए टाइम निकालना, नॉलेज हासिल करना, ठीक है ना। नॉलेज विल सेव यू फ्रॉम ऑल दीज सैडनेसेस इंशाल्लाह। वैसे नेचुरल है लेकिन इनसे बाहर निकलना है तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी को आपको जो है पकड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने आपसे कुछ बात की। और अब लास्टली क्विकली एक तो मैं कुछ दुआज़ बताऊंगा सैडनेस के वाले से, और फिर मैं 3 वजूहात रखूंगा आपके सामने कि हम लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। फिर मैं ज़रा डिप्रेशन की बात करूंगा। डिप्रेशन भी सैडनेस की ही एक फॉर्म है लेकिन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडनेस।
एक तो ये दुआ सूरह अनकबूत चैप्टर 29 वर्स नंबर 30, रब इंसुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन, माय लॉर्ड सपोर्ट मी अगेंस्ट द करप्टिंग पीपल। अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आप इनसिक्योर हो रहे हैं, इनसिक्योर होना नेचुरल है, कोई तंग करे, कोई किसी से आपको ख़दशा हो, तो ये दुआ बड़ी ज़बरदस्त है। और इसी तरह हदीस में भी एक दुआ है, उसको भी सर्च आउट करें कि दुश्मनी से पनाह मांगने की और दुश्मनों से जो है वो पनाह मांगने की, वो भी बड़ा ज़बरदस्त दुआ है। क्योंकि ज़ाहिर है कि सैडनेस कम्स फ्रॉम द sentences said by people or by the taunts given by people or by the machinations of people, लोगों की साजिशें देख देख के, रवैये देख के सैडनेस होती है। तो ये दुआ पढ़ें, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। फिर सूरह स्वाद चैप्टर 38 वर्स नंबर 41, रब्बहु इन्नी मस्सन्नी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब, इंडीड सेटन हैज टच्ड मी विद हार्डशिप एंड टॉर्मेंट। सुभान अल्लाह। ये है अयूब अलैहिस्सलाम की दुआ, बहुत खूबसूरत है कि शैतान ने मुझे छू लिया या रब, टॉर्मेंट से और ग्रीफ से। तो शैतान डेफिनेटली इंसान को टॉर्मेंट देता है, उसका पास्ट याद करा करा के, फ्यूचर के फियर्स दे दे के, या उसको कोई मुश्किल आई हो तो उस मुश्किल को एम्पलीफाई कर करके दिखा के। ओके, ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। फिर इन्नी मस्सन्नी ज़ुर्रु व अंता अरहमर राहिमीन, ब्यूटीफुल दुआ चैप्टर 21 वर्स नंबर 83, इंडीड माय रब मस्सन्नी ज़ुर्रु, adversity has touched me, wa anta arhamar rahimin, and you are the most merciful of the merciful। या रब आप अरहमर राहिमीन हैं, या अल्लाह मुझ पर रहम करें, मुझे गम ने छू लिया है, मुझे हिट कर दिया इस प्रॉब्लम ने। सुभान अल्लाह। ये दुआ बहुत मुफीद है। और फिर एक और दुआ आपको बताता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट दुआ, सूरह कसस चैप्टर 28 वर्स नंबर 24, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। और इसके बाद उनकी शादी हुई थी, अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ दिया। तो उलमाए कहते हैं कि किसी की शादी नहीं हो रही तो वो ये दुआ पढ़े, माई लॉर्ड इंडीड आई एम फॉर वट एवर गुड यू वुड सेंड डाउन टू मी इन नीड। क्या बात है। तो ये 4 दुआज मैंने आपके सामने रखी हैं, और भी बहुत दुआज हैं। सैडनेस की दुआ, हिस्नुल मुस्लिम की ऐप डाउनलोड करें, उसमें सैडनेस की दुआ है, बट ये मैंने कुरान से जो है वो आपको बताया। ओके जी। तो लास्टली देखें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अमूमी तौर पे मैंने ये देखा है कि हम लोग 3 वजूहात की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। अब ज़रा डिप्रेशन जो ना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडनेस है, जिसके मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताए देता हूँ। चलें क्लिनिकल डिप्रेशन के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। एक तो एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन है ना, क्लिनिकल डिप्रेशन में आता है जी के फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, प्रोलॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, tearfulness, emptiness और hopelessness, it is one of the symptoms। अगर सिर्फ यही है, it doesn't mean अभी आप डिप्रेस हैं, it is one of the symptoms। Angry outbursts, irritability or frustration even over small matters, loss of interest or pleasure in most or all the normal activities such as sex, such as hobbies, such as sports। married couple जैसे अचानक से they lose the sense of the intimate relationship, और उनके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। स्लीप डिस्टर्बेंसेस इंक्लूडिंग इंसोम्निया विच इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, और स्लीपिंग टू मच, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी। सो इवन स्मॉल टास्क टेक एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी आप नॉर्मल टास्क सही से नहीं निभा सकते। रिड्यूस्ड एपेटाइट एंड वेट लॉस, अचानक से वेट लॉस हो गया, और इंक्रीज क्रेविंग्स फॉर फूड एंड वेट गेन, और अचानक से वेट गेन हो गया। वन ऑफ द साइंस, not all about it, one of the sign। feelings of worthlessness or guilt, fixating on past failures or self blame। fixating का मतलब है कि जमे रहना, हर वक्त वही सोचते रहना, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, blame ही करते रहना, blame ही करते रहना। unexplained physical problems such as back pain or headaches, trouble thinking, concentrating, making decisions and remembering things। frequent or recurrent thoughts of death, suicidal thoughts, suicide attempts or suicide। ये सब मिला के, ठीक है ना जी, 4-5 सिम्टम्स मिला के फिर हम कहेंगे डिप्रेशन। अदरवाइज वो सैडनेस की टाइप्स हैं, ग्रीफ है, जिससे इंशाल्लाह आप बाहर आ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आ जाएंगे। तो मैं 3 जो रीजंस आपको बता रहा था, देखें डिप्रेशन की। नंबर 1, या इंसान डिप्रेशन में जाता है अपने रिलेशनशिप्स की वजह से। उसने किसी दिल लगाया, शादी करना चाहता है, करना चाहती है, नहीं हुई, डिप्रेशन। माँ बाप से नहीं बन रही, डिप्रेशन। रिश्तेदारों ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन। सास ससुर ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन।
वाइफ ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन, हस्बैंड ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन, रिलेशनशिप्स, बच्चों ने बुढ़ापे में ओल्ड एज फेंक दिया, डिप्रेशन, ओल्ड एज होम फेंक दिया, डिप्रेशन। तो रिलेशनशिप्स दुख देते हैं, अपने बहुत दुख देते हैं ज़ाहिर। तो या तो रिलेशनशिप्स की वजह से, नंबर 2 फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत बड़ा एक रीज़न है, बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ा मसला है। जॉब नहीं लग रही, इंसान एक वक्त आता है शायद डिप्रेशन में ही चला जाए, ठीक है जी। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, फाइनेंशियल डिप्रेशन, खाने को कुछ नहीं है, फ़क़र आ गया, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। तो फाइनेंशियल मैटर्स। नंबर 3 रीज़न जो कि मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन की वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ है हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ पास्ट। हम पास्ट की कुछ चीज़ें, कुछ हादसात को कभी नहीं भुला पाते। जैसे एक बंदा डिवोर्सी है, डिवोर्स हो गई, या वो निकल ही नहीं रहा उस फेज़ से, या वो निकल ही नहीं रही उस फेज़ से, तो कैसे आगे बढ़ना। तो अगर वो सोचता ही रहेगा, सोचती रहेगी, अब एक बंदे के में कोई कमी है, मिसाल के तौर पे कोई खूबसूरत नहीं है, और वैसे तो सारे ही खूबसूरत है ना, अल्लाह ने बनाया, व्हाट आई मीन इज़ के अकॉर्डिंग टू सोसाइटी स्टैंडर्ड्स को खूबसूरत नहीं है, तो वो क्या करे, यही सोचता रहे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ और मेरा फिगर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेट मी टेल यू, अल्लाह अकबर, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ जितना हमारी बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ डिप्रेशन में है इस वजह से, एकेडमी गोइंग और स्कूल गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग, कि मुझे लिफ्ट नहीं कराते लड़के। यानी कि कैसी खबीस सोसाइटी हमने बना दी है, कैसी हमने मतलब कि जानवरों वाली सोसाइटी बना दी है, कि एक बच्ची इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि मेरा फिगर नहीं ठीक, इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि मेरी शादी नहीं होगी, इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि मुझे लिफ्ट नहीं कराते लड़के, इनकी नज़रें दूसरों पे होती हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी हैव वी क्रिएटेड।